गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम गॉस थ्योरम की नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि गॉस थ्योरम की इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम? वी यूज़ द गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. As we have already discussed that we can find the electric field by using Coulomb's law, but according to Coulomb's law is valid only for point charges. That is, if there is a discrete distribution of charges, we can apply Coulomb's law to find the electric field. But if there is a continuous distribution of charges, then we apply Gauss theorem to find the electric field. So for the continuous distribution of charges, Gauss theorem is applicable to find the electric field. And now we will start the next application, the electric field intensity due to infinite long thin plane sheet of charges. Means we have thin sheet having positive charge distribution, charge density sigma. Because charge is positive, so electric field will be radially outward toward left and toward right. That is, consider also when we apply Gauss theorem, we need a symmetrical closed surface, and here that is known as Gaussian surface. And in this case, in case of a plane sheet, the symmetrical Gaussian surface is a cylinder passing through this sheet. This cylindrical surface is made up of three parts, that is two circle and one curved surface. Consider radius of the cylinder is r, length of the cylinder is l. Now field lines remain straight, parallel and uniformly spaced, that is uniform electric field. Consider a part of the cylinder, that is circle A, having area vector ds. Electric field will be radially outward toward the right, that is angle between E and ds will be 0 for A, surface A. Then surface B having again area vector ds normal to the area, and electric field E, and angle between E and ds again 0 because these are in same direction toward left. Consider the third curved surface of the cylinder, that is C, having area vector perpendicular to it, and electric field is radially outward toward the right or toward the left. Then angle between E and ds is 90 degree for surface C. Now according to Gauss theorem, flux is equal to E ds cos of E ds is, which is further equal to Q upon epsilon naught. Now in this case the integration has a closed circle on the integration sign. This circle represents the closed surface, means integration over a closed surface. This is a symbol for integration over closed surface, and this closed surface can be split into three parts, that is surface A, surface B and surface C. So we can write it as integration over surface A plus over surface B over surface C. But for A and B angle is 0, means by the definition of the dot product E ds cos of 0, E ds cos of 0 for surface B and A, and 90 for surface C, and cos 90 is 0. So value is E ds plus E ds for surface A and B. तो दोनों को एड अप करेंगे, मीन्स A और B surface, these are the circle of this cylindrical surface. So we have to add up these two, that is 2E into ds का इंटीग्रेट करेंगे. ds means integration over a surface A and B, that is circle. So area of the circle is pi r square, because radius is r, area of the circle is pi r square. So आपके पास E dot ds over the closed surface integration is equal to कितना आ गया 2E into pi r square. But also this E dot ds is equal to Q upon epsilon naught according to Gauss theorem. So equate this is equal to Q upon epsilon naught, but in terms of charge density Q is equal to, that is charge density क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और वहाँ से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया. सो वी कैन फाइंड दैट 2E pi r square is equal to sigma pi r square upon epsilon naught. pi r square कैंसर. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, sigma upon 2 epsilon naught. This is most important formula, and this formula will be used in the next application, that is electric field due to plane sheet of charge having
वैल्यू ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। इस फॉर्मूले से आपके पास बिल्कुल क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आ रही है इस केस में, जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन दिस साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, दैट इज़ neither depend upon the size of the Gaussian surface nor the point of considering of radius of the cylindrical surface, ना लेंथ ना रेडियस आ रहा है इसके अंदर, तो Gaussian surface के इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास जो थिन शीट की वजह उसकी जगह थिक शीट हो तो उस केस में हमारे पास 2 शीट्स के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, that is between the plate is sigma upon epsilon naught. Third application is electric field due to two parallel infinite long thin plane sheet of charges, means 2 sheets। पहले हमने एक शीट का किया था और एक शीट के लिए आपके पास वैल्यू आ रही है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम करेंगे 2 शीट्स जो पैरेलल हैं, लेकिन इसमें हम डिफरेंट केस से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, कंसीडर सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, मीन्स चार्ज डेंसिटी दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन सिग्मा 1 ज़्यादा है, सिग्मा 2 कम है। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। कंसीडर 2 प्लेट्स हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2, बोथ शीट्स है पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड टूवर्ड लेफ्ट एंड टूवर्ड राइट। फर्स्ट वी कंसीडर हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E1 है, और E1 की वैल्यू रेडियली आउटवर्ड टूवर्ड लेफ्ट भी है और टूवर्ड राइट भी है। देन सेकेंड शीट हमने कंसीडर की है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सपोज किया हमने, E2, और E2 की वैल्यू भी रेडियली आउटवर्ड भी होगी और रेडियली इनवर्ड टूवर्ड आउटवर्ड होगी, टूवर्ड लेफ्ट एंड टूवर्ड राइट, दोनों साइड आउटवर्ड। सो इस डायग्राम को हम 3 रीजन में डिवाइड करेंगे। रीजन 1 हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E, रीजन 2, रीजन 3। अब हमें तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। अब सबसे पहले हम रीजन 1 कंसीडर करेंगे। रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 बोथ आर टूवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस, बोथ आर टूवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा इन रीजन 1 में दैट विल बी इक्वल टू माइनस E1 माइनस E2, दैट इज़ माइनस कॉमन ले लेंगे तो E1 प्लस E2। बट E1 की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी सिंगल प्लेट का किया हुआ है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर वी कैन राइट इट एज in the region 1 electric field will be equal to, here minus sign is missing, E is equal to माइनस ब्रैकेट में E1 प्लस E2, और माइनस कॉमन आ जाएगा तो ई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देन रीजन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, रीजन 2 में जो E1 की वैल्यू है दैट इज़ टूवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो E2 की वैल्यू है दैट इज़ टूवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2। जो पॉजिटिव की ओर आएगा उसको प्लस लेंगे, जो नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएगा उसको माइनस लेंगे, तो दोनों का नेगेटिव डिफरेंस के इक्वल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देन रीजन 3 में दोनों पॉजिटिव की डायरेक्शन में है तो दोनों का सम होगा। देन केस नंबर 2, अगर आपके पास एक चार्ज डेंसिटी प्लस है और एक चार्ज डेंसिटी माइनस है, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। अब हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर चार्ज डेंसिटी प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड दी चार्ज। अब ये हमारे पास प्लस शीट थी, इसके ऊपर चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड टूवर्ड लेफ्ट एंड टूवर्ड राइट। सेकेंड शीट इज नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड द शीट आइदर ऑन लेफ्ट और ऑन राइट, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड द शीट। नाउ अगेन वी विल डिवाइड दिस इनटू 3 रीजन, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। रीजन 1 में आपके पास क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 की डायरेक्शन है दैट इज़ टूवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसकी वैल्यू माइनस लेंगे, और E2 की वैल्यू जो है टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसको हम प्लस लेंगे, तो मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 कितना आएगा, E1 माइनस E2, E2 माइनस E1, बिकॉज E2 जो है वो प्लस की ओर है और E1 जो है वो माइनस की ओर है। द रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
एंड E2 भी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो दोनों का सम होगा। इन रीजन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में है, लेकिन E2 जो है वो नेगेटिव की डायरेक्शन में, दैट इज़ E1 माइनस E2। देन आपके पास लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, दोनों का सम बिकॉज इन द सेम डायरेक्शन along positive x axis, and in region 3 it is in opposite direction, E1 जो है प्लस की ओर है, E2 माइनस की ओर है, तो दैट इज़ बाय नेगेटिव ऑफ दिस। इसका स्पेशल केस है कि अगर दोनों चार्ज डेंसिटी इक्वल हों, एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा, देन हम प्लस सिग्मा 1 की जगह पे भी सिग्मा पुट करेंगे, सिग्मा 2 की जगह पे भी सिग्मा पुट करेंगे, और आपके पास जो आंसर है ऊपर वाले फॉर्मूले में ही पुट करके आएगा। तो दैट इज़ उसके रिजल्ट क्या क्लियर होगा आपके पास। रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और रीजन 1 एंड 3 में बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो कैंसल ईच अदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन रीजन 1 एंड रीजन 3। नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। मीन्स कंसिडर ए शेल हैविंग सेंटर O, रेडियस R, इसके सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दैट इज चार्ज इज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। शेल मीन्स इट इज़ hollow. Now we have to find the electric field because of this charged spherical shell at the point outside the shell, on the shell and inside the shell. So first of all we will discuss if the observation point lies outside this shell. Consider observation point P outside this shell. Draw a Gaussian surface. Let radius of the Gaussian surface is small r. Now around point P consider a small area vector, that is ds. Direction is ds vector normal to this area. Electric field is also radially outward because it is a positive charge, so angle between E and ds is 0. Then apply Gauss theorem to find the electric field at point P. Gauss theorem क्या है आपके पास, E ds Q upon एप्सिलॉन नॉट, बट E डॉट डी एस एंगल इज 0, कॉस 0 कितना होता है 1, E डी एस कॉस ऑफ 0, 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। डी एस का इंटीग्रेट करेंगे हम, डी एस का इंटीग्रेशन मतलब सरफेस इंटीग्रल ओवर दी स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। Here it is clear that electric field is inversely proportional to radius of the Gaussian surface, that is r के distance बढ़ता जाएगा, electric field की value decrease होती जाएगी। Next is in terms of charge density, Q is equal to sigma into 4 pi r square पुट करेंगे तो चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी से हम नेक्स्ट केस करें कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो है दैट विल लाई ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फेरिकल शेल, देन जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी, और आपके पास फॉर्मूला जो है वो ऑन दी स्फीयर आ जाएगा। देन इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी इसने फाइंड कर लिया है। देन उसके बाद एट ए पॉइंट ऑन दी सरफेस ऑफ दी शेल, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है। डायरेक्टली मीन्स कि स्मॉल आर की जगह आपने सिंपली कैपिटल आर पुट करना है, बिकॉज इस केस में जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो ऑन दी स्फीयर ही लिया है, दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। देन अगेन अप्लाई गॉस थ्योरम, E डॉट डी एस कॉस ऑफ 0, कॉस 0 1, देन डी एस का इंटीग्रेट करेंगे, और डी एस का इंटीग्रेशन कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर होगा यहाँ पे बिकॉज रेडियस आर है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है तो चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बिकॉज जो यहाँ पे स्फेरिकल शेल है, जो चार्ज है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनसाइड दी शेल लेंगे तो यहाँ पे इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि इनसाइड दी शेल अगर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज की वैल्यू 0 है, तो फ्लक्स भी 0 होगा, बिकॉज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q, कितना चार्ज इस सरफेस के अंदर है, Q 0 हो गया तो फ्लक्स भी कितना होगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा 0। तो दैट इज़ कंसीडर, इसमें हमने पॉइंट इनसाइड लिया, फिर से उसके अराउंड गॉसियन सरफेस कंसीडर किया,
रेडियस उसका हमने r डैश सपोज किया, पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए अगेन गॉस थ्योरम लगाएंगे। एंगल फिर से 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 आएगी और ds का इंटीग्रेशन आएगा 4πr², बट चार्ज 0 है इनसाइड, तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द spherical shell. This property is equal to 0 inside a cavity is used for electrostatic shielding. This we will discuss in the next chapter, that is capacitor. But here I want to add one more important point, that is अगर आपके पास किसी सरफेस में डाइपोल रखा हो, suppose a dipole is placed inside any surface, then what will be the value of flux? डाइपोल मीन्स एक चार्ज प्लस क्यू और दूसरा चार्ज माइनस क्यू, तो इसका मतलब सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? 0। अगर चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो फ्लक्स भी 0 होगा। नेक्स्ट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आई वांट टू डिस्कस हियर, दैट इज़ अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेल है और एक स्फेरिकल शेल और दूसरा स्फेरिकल शेल, दो स्फीयर है आपके पास, एक का रेडियस r1 दूसरे का रेडियस r2। एक के अंदर जो चार्ज है वो सपोज q1, दूसरे के अंदर जो चार्ज है दैट इज़ q2। देन व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इनर सरफेस एंड द आउटर सरफेस। नाउ इनर सरफेस पे जो चार्ज है वो ओनली q1 है, तो फ्लक्स कितना होगा? q1/ε0। अगर आउटर सरफेस के थ्रू आपने फ्लक्स फाइंड करना होगा, आउटर स्फीयर के थ्रू फ्लक्स फाइंड करना होगा, तो आउटर स्फीयर का जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू q1 + q2 डिवाइडेड बाई ε0। रीज़न जो q1 चार्ज है वो सेकेंड स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, तो दैट इज़ अगर आपने फ्लक्स 1 की वैल्यू लिखनी है φ1, दैट विल बी इक्वल टू q1/ε0, ठीक है। लेकिन अगर आपने फ्लक्स सेकंड की वैल्यू लिखनी है दैट इज़ φ2 की वैल्यू, तो φ2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड स्फीयर के राउंड, तो दैट इज़ q1 + q2, नॉट ओनली q2, बिकॉज q1 चार्ज जो है दैट इज़ ऑल्सो लाइज इनसाइड दी सेकंड स्फीयर। तो टोटल चार्ज कितना होगा? q1 + q2। तो फ्लक्स कितना होगा? φ2 इज इक्वल टू q1 + q2, that is divided by ε0. This is all about the today's lecture. Thank you.